بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چچی کا نام سمیرہ تھا، جو سب سے چھوٹے چچا کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ میرے والد اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، اس لیے وہ ان کا احترام اپنے والد کی ہی طرح کرتے تھے، اور ان کی بیگمات بھی ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت میں چھوٹے چچا کے گھر میں تھا، چونکہ امی ابو دونوں مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے 1 مہینے کے لیے سعودیہ جا رہے تھے، اور میرے دونوں بڑے بھائی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ پہلے ہی ملک سے باہر تھے۔ روانگی سے پہلے جب چھوٹے چچا ابو سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے ضد کی کہ وہ جاتے ہوئے مجھے ان کے گھر چھوڑ جائیں۔ ابو نے کافی منع کیا کہ اب ریحان بڑا ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، مگر چچا نہیں مانے، اور انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا، اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ میرا نام ریحان ہے، میں 20 سال کا ہوں۔ میرے پاس ہمارے پرانے گھر کی چابی ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، جس میں اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ چچی سمیرہ کی شادی میرے چھوٹے چچا سے کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، مگر اس وقت بھی چچی کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ چچی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور بھرپور جسم کی مالک عورت تھی۔ چچا اور چچی کی جوڑی مثالی کہی جاتی تھی، پر ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور شاید وہ دونوں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے۔ چچی اور چچا کا پیار بہت تھا، اور میرا اندازہ تھا کہ چچا نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد چچی کا جسم انتہائی دلکش ہو گیا تھا۔ صورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت جب چچی گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تبھی چچی نے مجھ سے پوچھا کہ ریحان بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا؟ تو میں دل ہی دل میں چچی کے بیٹا بلانے پر برا مناتے ہوئے کہا، نہیں چچی، سیمیسٹر ختم ہو گیا ہے نا، اس لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ چچی نے سر ہلایا اور جھک کر ٹیبل پر کپڑا مارنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ میرا چچا کے گھر شفٹ ہوئے 4تھا روز تھا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر چچا نے چچی اور مجھ سے کہا کہ انہیں چند روز کے لیے کراچی جانا ہے۔ میرے چچا جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اس لیے انہیں کبھی کبھی شہر سے باہر جانا پڑتا۔ اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ چچی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، مگر اس دفعہ میں ان کے گھر میں تھا تو انہوں نے اکیلے ہی جانا مناسب سمجھا۔ میں نے چچی کی روٹین اور ان کی عادتوں کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ چچی چائے کا استعمال زیادہ کرتی ہیں اور چائے کھلے دودھ کی پیتی ہیں، اور میں ڈبے کے دودھ کی چائے پینے کا عادی ہوں۔ میں کال آف ڈیوٹی کھیل رہا تھا۔ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ چچی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ اگر کسی نے ٹیم کمبیٹ میں حصہ لیا ہو تو اسے پتا ہوگا کہ لڑکے کتنی گندی گالیاں اور زبان استعمال کرتے ہیں۔ چچی دوسری طرف کی آواز تو نہیں سن سکتی تھی، پر میں جو کچھ بکواس کر رہا تھا وہ انتہائی بیہودہ تھا۔ چچی حیران پریشان سی مجھے بکواس کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، پر ایکسپلوژز اور گن تھنڈر کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چچی میری بیہودہ بکواس کافی دیر تک سنتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو کچھ دوستوں سے ملنے باہر جانے لگا تو میں چچی کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، چچی میں نے چائے پینی ہے، بنا دو گی کیا؟ چچی نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں میرے بچے، بس 10 منٹ میں فریش ہو جاؤں پھر بنا دیتی ہوں، اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا اور پھر اسے توڑ لیا۔ چچی مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، باہر ہوں۔ تو وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑی باہر آئی جس میں 2 کپ چائے تھی۔ انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا چچی کی طرف بڑھا دیا۔
चच्ची ने मुस्कुरा कर वो फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर ओस पड़ गए। मैंने चच्ची की तरफ देखा और कहा, चच्ची बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर चले घूमने तो चच्ची ने कहा, नहीं रेहान, मैं आपके चच्चा के साथ हर जगह जाती हूँ और मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात को खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चच्ची भी मेरे पास आकर बैठ गई। मूवी कोई वार मूवी थी। चाची ने देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा ये सारी गालियां और बकवास तुमने यहां से सीखी हैं? चच्ची फिर बोली, बेटा बहुत गंदी बात है, तुम बहुत बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चच्ची ने फिर कहा, मैं भाभी से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठा कर देखा और चच्ची को कहा, चच्ची गलती हो गई, माफ कर दें। पर क्या करूं, सब लड़के इस तरह की ही बकवास करते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है, तो इस तरह की बकवास ही मुंह से निकलती है। चच्ची हंस पड़ी और कहा, डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ। ये क्या लगाया हुआ है? मेरी सांस में सांस आई और मैंने चच्ची से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं, तो उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगा दो। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। खैर चच्ची मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी उनको देख रहा था। चच्ची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रख ली और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चच्ची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी चच्ची की तरह सोफे के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चच्ची ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनकी देखा देखी सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। चच्ची हंस पड़ी और मुझे कहा, रेहान मेरी नकल उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिलाकर कहा, जी। तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा। फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों? तो मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है, ना किसी से जूते, ऊपर से आप इतना ही बोर हो। चच्ची के माथे पर बाल पड़े और कहा, रेहान क्या मैं वाकई ही में बोर हूं? तो मैंने कहा, नहीं तो और क्या, पता नहीं मेरा क्या बनेगा इन 20-22 दिनों में। चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे लित्तर खाने हैं तो मैं लगा देती हूँ, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, ऐसे नहीं खाने मुझे, कोई वजह भी तो हो। आप क्या समझ रही हैं कि मैं आराम से खा लूंगा मार? चच्ची मेरी बातें सुनकर हंस रही थी और वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे में थी। खैर इस तरह की फजूल बातें करते करते चच्ची मुझसे काफी फरी हो गई। जब रात के 11 बजे तो उनके मोबाइल पर चच्चा का फोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी। इंतहाई बकवास और फजूल सी कोई मूवी थी। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चच्ची के कमरे से चच्ची की आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ आपको, पता नहीं कैसे गुजर रहे हैं ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो चच्ची ने कहा वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो देखा कि किचन में कोई नहीं है। मैंने चच्ची के रूम की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, लेकिन चच्ची सो रही हैं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि चच्ची के कमरे का दरवाजा खुला और वो बड़बड़ा कर बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी रेहान, रात को नींद नहीं आई और बहुत देर से सोई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठा गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इट्स ओके, आपने नाश्ता करना है ना, चलो आज आपका नाश्ता मैं बनाता हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। चच्ची हंस पड़ी और कहा, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, आप फ्रेश होकर आएं, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे मेरे स्किल्स के बारे में। चच्ची ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में घुसने लगी। तो मैंने कहा, मैडम नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी? चच्ची ने कहका लगाया और कहा, बकवास नहीं करो,
रेहान मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा। चच्ची ने मुझे देखा तो कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झुक कर कहा मैडम आपका नाश्ता, और ट्रे उनके सामने रख दी। चच्ची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चच्ची ने मेरे सर में हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब किया और कहा वाह बहुत अक्लमंद हो। मैं तो समझी थी कि तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह हो गए हो हर चीज से। मैंने चच्ची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया, फिर घंटा लगेगा। चच्ची ने मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कोई नहीं खराब हुआ, आराम से बैठ, और अपना नाश्ता करने लगी। चच्ची ने नाश्ता किया और फिर कहा रेहान बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। मैं आज बहुत दिनों बाद इस तरह हंसी हूं और इतना अच्छा नाश्ता किया है। थैंक्स, मैंने मुंह बनाकर कहा। तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? चच्ची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा दोस्त तो हो पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपना गाल माल कर कहा यार एक तो ये बहुत गंदी आदत होती है आप आंटियों की, गाल ही लाल कर देती हो। चच्ची फिर कहका लगाकर हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे गालों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। चच्ची हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा रुक मैं आंटी लगती हूं तुझे। मैंने भी दौड़ते हुए कहा चच्ची को अंग्रेजी में आंट ही कहते हैं। चच्ची रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा ठीक है फिर, और साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा क्या हुआ? तो चच्ची एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों गालों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा कोई दोस्ती नहीं आपसे यार, आप तो बहुत बेरहम हो। चच्ची ने हंसते हुए मुझे जप्फी डाली और जहां मुझे चुटकी काटी थी वहां प्यार करते हुए कहा अच्छा ना यार सॉरी। चच्ची मुझसे अलहदा हुई और कहा अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ ग्रासरी लेनी है वो ले आएंगे मार्केट से। मैंने कहा ओके, मैं भी चेंज कर लूं, शायद कोई लड़की ही फंस जाए मेरे साथ और मेरी भी मौजें हो जाए। चच्ची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा बाज आ जाओ रेहान। मैंने हैरानी से कहा किस चीज से मैडम जी? तो बोली अपनी हरकतों से। मैंने कहा यार जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए ना, वरना तो सारी उम्र आप जैसी आंटियां लाड कर करके ही किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। चच्ची को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी थी, मगर जब लगी तो अपने पांव से जूती उतारते हुए कहने लगी शर्म कर। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आ गया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में चच्ची भी बाहर आ गई। जब वो बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। उफ सफेद कलर की कमीज और नीचे जीन्स। मैंने चच्ची को देखते हुए कहा क्या इरादा है मैडम जी? तो चच्ची ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा क्यों क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा मैडम बाहर किसी को नहीं पता कि आप किसी के मनको हैं, और 2-4 ने वैसे ही लड़क जाना है आपको देखकर, और 4-5 ने रिश्ता भिजवा देना है, और कुछ मेरे जैसों ने तो सिर्फ आहें भरनी है। चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा ओए फजूल बकवास करता रहता है, कुछ नहीं होता। जब उन्होंने कहा चलो तो मैंने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा माना कि आपके दीवाने शहर में 1000 होंगे, पर इतनी सुबह कौन उल्लू का पट्ठा दुकान खोलेगा? चच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली हाँ ठीक कह रहे हो। मैंने कहा मैडम जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग तो आपको ही देखते होंगे ना, अपना काम कौन देखता होगा? चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा रेहान यार शर्म कर, मैं तेरी चच्ची हूँ। मैंने भी सर झुका कर कहा ओके चच्ची जान। तो वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा बाज नहीं आएगा इस फ्लर्ट करने से। मैंने उनकी तरफ देखे बगैर कहा कौन बदनसीब आपसे फ्लर्ट करना चाहेगा? जो भी चाहेगा वो सब कुछ हकीकत में ही चाहेगा। चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चच्ची मेरे करीब हुई। सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कोई आप जैसी मिली ही नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे अब्बू से रोज छितरौल करवानी पड़ती। चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने भी किसी मासूम से आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा बहुत ज्यादा। चच्ची हंस पड़ी और कहा तू बाज नहीं आएगा। चच्ची उठी और कहा
रेहान दूध तो ले आओ, फ्रिज में खत्म हो गया होगा। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चल पड़ा। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रिज में रखा और चच्ची को बताने उनके कमरे में चला गया। पर सामने जो मंजर था वो पागल कर देने के लिए काफी था। चच्ची शायद नहा कर निकली थी और उस वक्त उनके बदन पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही थे। उन बेदाग जिस्म उस वक्त कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई कि टांगों में जान ही ना हो। मैं पलटने ही वाला था कि चच्ची ने आवाज देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हलक से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सिर्फ सर हिलाया तो आफत आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर ऊपर उठाया और कहा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। चच्ची ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, रेहान सच सच बताओ, मेरा इस तरह आपके सामने आना अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके जिस्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं तो आप गलत हैं मैडम। माना कि आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, पर यह ही सब कुछ नहीं है। चच्ची ने एक लंबा सा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूं। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से भी महरूम कर दें। चच्ची के लिए ये बहुत नाजुक मरहला था क्योंकि मैंने वो बात कर दी थी। चच्ची बिस्तर पर बैठ गई और कहा, रेहान मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, रेहान जो मिल जाए उस पर शुक्र कर लेना चाहिए। चच्ची खड़ी हुई और मेरी आंखों में देखते हुए और रेहान कहते हुए मुझसे लिपट गई। चाची के जहन में क्या चल रहा था, पर उस वक्त वहां से हटना मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैंने सुकून से अपने कपड़े पहने और चच्ची के बाहर आने का इंतजार करने लगा। तब भी मुझे लगा कि चच्ची वॉशरूम में रो रही हैं। उनके सिसकने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा, क्या आप ठीक है ना? क्या बात है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, चच्ची क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? अंदर से आवाज आई, रेहान मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में जाओ या कहीं बाहर चले जाओ। मैंने कहा, ओके, पर आप ठीक है ना? तो चच्ची ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आगे क्या करना है, क्योंकि वही हो रहा था जिसका डर था। शुक्रिया।